Hello everyone, in our soil mechanics, today we are going to see our most important topic, different types of roller and their uses. This is the one of the method of field compaction. Now before we going to see types of rollers and their uses, first of all, in a previous video we showed that method of field compaction. So there are various method of field compaction are rolling, ramming and vibration. So in a rolling there are different type of rollers are used for compaction of soil. So compaction it depends upon some factor like contact pressure, number of passes, layer thickness and speed of roller. ठीक है, तो ये जो रोलिंग है, रोलिंग में क्या होगा, ये जनरली यूज़ फॉर फील कंपेक्शन, फील के ऊपर कॉम्पेक्शन करने के लिए यूज़ होगा. सो ये जो मेथड है, ठीक है, रोलिंग मेथड, वो डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर आर अफेक्ट लाइक कॉन्टैक्ट प्रेशर, number of passes, layer thickness and speed of roller. So there are different type of roller are used: smooth wheel roller, pneumatic tire rollers, sea foot roller and track laying vehicle. So there are some roller are used. So our next topic is different types of roller and their uses. So first is in a smooth wheel roller. ठीक है, स्मूथ व्हील रोलर. सो इन अ स्मूथ व्हील रोलर देर आर ऑल्सो थ्री पार्ट्स. सो कन्वेंशनल थ्री व्हील टायर, देन टेंडम रोलर स्वेट एंड थ्री एक्सल टेंडम रोलर. ठीक है, सो इन अ टाइप्स ऑफ स्मूथ व्हील रोलर्स आर कन्वेंशनल थ्री व्हील टाइप, टेंडम रोलर स्वेट एंड थ्री एक्सल टेंडम roller. So in a first conventional three wheel tire, the weight of tire is 2 to 15 ton, or tandem roller weight of roller is 1 to 14 ton, and last 3 axle tandem roller weight is 12 to 18 ton. So this roller can operate and to fro without turning. ठीक है, ये जो रोलर है वो कैसे ऑपरेट होगा, विदाउट टर्निंग. ठीक है, सो दिस रोलर्स आर यूजफुल फॉर कंपेक्टिंग ग्रैन्युलर बेस कोर्स ऑफ हाईवे एंड रनवे. ठीक है, कि किसी भी हमें हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे कि एयरपोर्ट पे रनवे कंस्ट्रक्ट करना है, एट दैट टाइम हमें मोस्टली क्या यूज़ होगा, ग्रैन्युलर कोर्स ग्रेन एग्रीगेट. ठीक है, तो एट दैट टाइम ड्यूरिंग कंपेक्शन these type of roller are used. So they are used for finishing operation after the compaction of fields. ठीक है, और obviously it is used for finishing operation after compaction of the field. These are not effective for compaction of deep layer of soil. ठीक है, कि this type of roller are not suitable for deep layer soil. So next, pneumatic tire roller. Second, pneumatic type roller. ठीक है, सो pneumatic tire roller आर compress air to develop the required inflation pressure. ठीक है, इन्फ्लेशन प्रेशर यानी कि बलून जैसा एट द बेस ऑफ द टायर बलून आर जनरेटेड, बलून जैसा जनरेट होगा और ये जो सॉइल है उसे कॉम्पैक्ट करेगा. सो pneumatic टायर रोलर आर कंप्रेस एयर. ठीक है, कंप्रेस एयर आएगा, वो डेवलप्ड रिक्वायर इन्फ्लेशन प्रेशर. The roller generally consists of 9 to 11 wheel fixed on a 2 axle. ठीक है, जो रोलर है उसमें जनरली कितने व्हील कनेक्टेड होगा एक्सल पे, 9 to 11 व्हील्स विद द pneumatic टायर. सो स्पेस दैट कंप्लीट कवरेज इज obtained with each pass of the roller, and the gross mass of the roller varies from 5 to 200 ton. ठीक है, so this is the pneumatic tire roller. So next, the roller compact the soil primarily by kneading action. ठीक है, क्या है, कैसे कॉम्पैक्ट करेगा, देयर इज kneading action is generated. So this roller are effective for compacting cohesive as well cohesionless soil. kneading action होगा, so obviously it is suitable for
cohesive and cohesionless soil. So what is cohesive soil and what is cohesionless soil? So in cohesive soil, the atom in the soil particle are connected to each other. ठीक है, जो सॉइल पार्टिकल के अंदर जो एटम होगा, सॉइल के पार्टिकल होगा, वो एक दूसरे से नज़दीक जुड़े होंगे. लाइक क्ले सॉइल, इट इज़ कोहेसिव सॉइल. एंड कोहेशनलेस सॉइल, जो सॉइल पार्टिकल है, जो उसके अंदर जो एटम है, सॉइल के जो एटम है, वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए, नज़दीक नहीं हो गए. लाइक सैंड इज़ अ कोहेशनलेस सॉइल. सो pneumatic type rollers are effective for compacting cohesive as well as cohesionless soil. Then light roller are effective for compacting soil layer of small thickness up to 15 centimeter. ठीक है, क्या है light roller? This is the one of the type of the pneumatic type. ठीक है, so in a light rollers क्या weight होगा? Up to 20 ton are effective for compacting soil layer of a small thickness up to 15 centimeter. ठीक है, जो स्मॉल टायर यूज़ होगा एट द टाइम, जो कंपेक्शन लेयर होगा उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर. वेयर एज अ हैवी रोलर आर यूजफुल फॉर लेयर ऑफ थिकनेस अप टू 30 सेंटीमीटर. हैवी रोलर के लिए कितनी होगी सॉइल लेयर की थिकनेस? 30 सेंटीमीटर. सो दिस इज द pneumatic टायर रोलर. नाउ नेक्स्ट, sheep foot roller. So in the sheep foot roller consists of a hollow drum with a large number of small projection known as a sheep feet on its surface. ठीक है, नाम से ही पता चलता है sheep foot roller. So sheep foot roller में क्या होगा? एक होलो ड्रम होगा. ड्रम के जो सरफेस है उस पर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन, जैसे जैसे पॉइंट जैसे निकला होगा, इज नोन एज शीप फीट. उसको क्या बोलेंगे? शीप फीट. वो सरफेस पे कनेक्टेड होगा. आप फिगर में देख सकते हो, ये फिगर में दिखाया गया है कि ये होलो ड्रम है, सर्कुलर ड्रम, और ये जो है वो क्या है? प्रोजेक्शन. इट इज़ कॉल्ड शीप फीट. सो दिस प्रोजेक्शन पेनिट्रेट टू सॉइल. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में, ये जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ जाएगा? सॉइल के अंदर. ड्यूरिंग द रोलिंग ऑपरेशन एंड कोज कंपेक्शन. ठीक है, जब रोल होगा एट दैट टाइम ये प्रोजेक्शन क्या होगा? सॉइल के अंदर जाएगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा? सॉइल का कंपेक्शन. द ड्रम कैन बी फिल विथ वाटर और अ बेलास्ट टू इंक्रीज द मास. ठीक है, अब आप प्योर कॉम्पेक्ट से लिए हमें क्या जाएगा? ये जो ड्रम है उसका मास बढ़ाना है, उसका वेट बढ़ाना है. तो हमें क्या यूज़ कर सकते हो? ड्रम के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फिल विथ वाटर, पानी भर सकते हैं, एज वेल एज बैलास्ट, यानी कि वन टाइप ऑफ स्टोन यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द मास ऑफ द ड्रम. द लोडेड वेट पर ड्रम रेंजेस फ्रॉम 1.5 to 10 टन. ठीक है, ड्रम का वेट कितना होना चाहिए? लोडेड वेट 1.5 to 10 वेट. एंड द फुट प्रेशर रेंजेस फ्रॉम 8 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, फुट का प्रेशर रेंज क्या होगा? 8 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द sheep foot roller आर आइडियली suited फॉर कंपेक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल. ठीक है, दिस इज suitable फॉर ओनली कोहेसिव सॉइल. The roller compact the soil by the combination of tamping and cleaning action. ठीक है, क्या होगा? During compaction there are obviously generating cleaning action. So this is the sheep foot roller. तो आप क्या लिख सकते हो sheep foot roller में? कि एक ड्रम हो, होलो ड्रम, उसमें उसकी जो सरफेस है वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्शन होगा. इट इज़ कॉल्ड sheep foot. ठीक है, ड्यूरिंग कंपेक्शन ये जो प्रोजेक्शन है शीप फुट, वो सॉइल के अंदर जाएगा एंड सॉइल का कंपेक्शन होगा. सो ड्रम का मास बढ़ाने के लिए उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वाटर एज वेल एज बैलास्ट. देन लोडेड वेट ऑफ ड्रम क्या होगा? 1.5 to 10 टन. एंड फुट प्रेशर क्या होगा? 8 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर.
it is ideally suited compaction of cohesive soil, not cohesionless soil, and there is unlock knee action are generated. So it is sheep foot roller. Now next, vibratory rollers. So this roller are available both as pneumatic type and smooth wheel type. ठीक है, जो वाइब्रेटिंग रोलर है वो किस में यूज़ होगा, बोथ प्यूमेटिक टाइप एंड स्मूथ व्हील टाइप. ठीक है, इन अ स्मूथ व्हील टाइप एज सेपरेट मोटर ड्राइव अरेंजमेंट ऑफ एसेंट्रिक वेट टू क्रिएट हाई फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड अप एंड डाउन ऑसिलेशन ऑफ द ड्रम. दिस रोलर आर सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग ग्रेन्युलर सॉइल. ठीक है, ग्रेन्युलर सॉइल मतलब सॉइल पार्टिकल्स की ग्रेन साइज क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो इन अ स्मूथ व्हील टाइप अ सेपरेट मोटर ड्राइव अरेंजमेंट ऑफ एसेंट्रिक लो टू क्रिएट हाई फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड अप एंड डाउन ऑसिलेशन ऑफ द ड्रम. ड्रम का ऑसिलेशन करने के लिए, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड भी लो होना जरूरी होगा एंड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, एंड उसको हम ऑसिलेटेड करते हैं अप एंड डाउन. तो उसके लिए हमें क्या करना है, अ सेपरेट मोटर ड्राइव अरेंजमेंट. ठीक है, जो स्मूथ टाइप व्हील है तो सेपरेट मोटर आर प्रोवाइडेड. ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट की जा गई है इन अ स्मूथ व्हील टाइप, एंड इट इज़ यूज फॉर सुटेबल फॉर किसके लिए है, कॉम्पैक्टिंग ग्रेन्युलर सॉइल. सो इन अ प्यूमेटिक टायर वाइब्रेटिंग कंपैक्टर अ सेपरेट vibrating unit is attached to the wheel axle. ठीक है, and vice versa in a pneumatic type vibrating compactor a separate vibratory unit is attached to the wheel axle. wheel axle के पास एक एक्स्ट्रा वाइब्रेटरी कॉम्पैक्ट यूनिट कनेक्ट किया गया है. सो इट इज़ वाइब्रेटरी रोलर. सो देर आर टू टाइप्स इन वाइब्रेटरी रोलर. फर्स्ट इज स्मूथ व्हील टाइप एंड pneumatic टायर vibrator. So our next topic is field compaction control. So the laboratory compaction test give maximum dry density and optimum moisture content. ठीक है, जो लेबोरेटरी कंपेक्शन होगा सॉइल में उसे हमें क्या मिलेगा, सॉइल का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. So now in the field during the compaction of the soil it is essential to check the dry density and water content in order to effect proper quality control. So main aim अपना क्या है compaction का, to increase dry density and decrease air content और porosity को घटाना है और dry density को बढ़ाना है. It is our main motto of the compaction. So in the field, ठीक है, किसी भी फील्ड पे जो हमें कंपेक्शन करना है सॉइल का, तो इट इज़ एसेंशियल टू चेक द ड्राई डेंसिटी. सॉइल की हमें ड्राई डेंसिटी चेक करना है एंड वाटर कंटेंट इन ऑर्डर टू इफेक्ट प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल. सो द फील्ड कंपेक्शन कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट. क्या करना है इन फील्ड कंपेक्शन में कि हमें क्या डिटरमाइन करना है, ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट. So first is dry density. So dry density of soil is measured using core cutter method and sand replacement method. So in a dry density determination there are two methods are used. First is core cutter method and sand replacement method. So degree of compaction achieved in the field is measured by relative compaction, which is defined as the ratio expressed as a percentage of the field by density of the maximum density obtained by laboratory compaction test. So a relative compaction is equal to dry density in the field divided by dry density in the laboratory multiplied by 100. So हमें फील्ड पे सॉइल का जो ड्राई डेंसिटी डिराइव करना है, ठीक है, तो हम कैसे डिराइव करेंगे. सो देयर इज सम प्रोपोजन, ठीक है, द रेशियो बिटवीन ड्राई डेंसिटी इन द फील्ड, जो फील्ड पे हमें ड्राई डेंसिटी निकाला है सॉइल का उसका, प्लस ड्राई डेंसिटी इन द लेबोरेटरी. ठीक है, दोनों का रेशियो लेना है एंड उसको मल्टीप्लाई बाय करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे हमें मिलेगा रिलेटिव कंपेक्शन ऑफ द सॉइल. सो फॉर अ कोहेसिव सॉइल्स द ड्राई डेंसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 95% ऑफ द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट. ठीक है, सो
For a cohesive soil, the dye density of the order 95% of the maximum dye density of the standard Proctor test. ठीक है, सो सपोज हमें कोहेसिव सॉइल का ड्राई डेंसिटी डिराइव करना है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से हमें 95% मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें मिल सकती है. सो कैन बी अचीव यूजिंग सी फूड रोलर ए प्यूमेटिक टाइप रोलर. ठीक है, इट सेम एज वी कैन achieve from seafood roller and pneumatic type roller. So it is compaction types, field compaction type, seafood roller and pneumatic tire roller. हमने देखा previous video में. So however if the soil is very heavy, clay only seafood roller are effective. ठीक है, हमने देखा है pneumatic roller is used for heavy soil like basalt. So if the soil is very heavy, clay only seafood roller are effective. For cohesion-less soil, the dry density of the order of 100% or even more of that in the modified Proctor test can be obtained using pneumatic type roller or vibratory rollers are used. ठीक है, और इन cohesion-less soil का हमें dry density निकालना है, तो हम field test कौन सी यूज़ करेंगे? मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा यूज़ करेंगे? मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट एंड इन फील्ड टेस्ट क्या करेंगे? प्यूमेटिक टाइप रोलर एंड वाइब्रेटरी रोलर आर यूज. एंड रिलेटिव कॉम्पेक्शन हम कैसे डिराइव करेंगे? ड्राई डेंसिटी इन द फील्ड डिवाइडेड बाय ड्राई डेंसिटी इन द लेबोरेटरी मल्टीप्लाई बाय 100. सो दैट्स वाई हम we can find relative compaction of the soil. So this is the field compaction control. So different type of roller and their uses में क्या क्या आएगा? So different type of roller are used are smooth wheel roller. So second pneumatic type tire roller, then seafood roller, vibratory roller. And in a field compaction, the field compaction control consists of determination of dry density and water content. So this is our field compaction control.